کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پوری دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام تر چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات ہے۔ بے شمار انبیاء کرام و رسولان اعظام اس خاندان گیتی پہ تشریف لائے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام کو اس خاندان گیتی پر بھیجا، اور سب سے آخر میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنے بندوں کو رشد و ہدایت کا مینار نور بنا کر اس خاندان گیتی پہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام و رسولان اعظام اس خاندان گیتی پہ تشریف لائے، تمام انبیاء و رسول کو بھی پروردگار عالم نے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھایا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے خود قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز جس کے اندر جان پائی جاتی ہے اسی ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھا، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، چاہے وہ درندے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیڑ پودے کی شکل میں ہو، زمین کی پستی کے اندر دریا کے تلاطم میں بھی اگر کوئی جانور بسنے والی ہے یا اللہ کی کوئی مخلوق بستی ہے تو اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر موت ہر مذہب والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر جب مومن مرتا ہے اور جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اور جب کسی غیر مسلم کی روح قبض ہوتی ہے اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کی روح کو تسکین عطا کی جاتی ہے، اس کی روح کو آزادیاں عطا ہو جاتی ہے، اس کی روح جب تک دنیا میں انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی تب تک وہ روح مقید تھی، جسم کے اندر قید کر دی گئی تھی، مگر جو ہی وہ انسان کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے، جب وہ کامل ایمان والا ہو، ایمان جیسے لذت ہے وہ اپنے آپ کو شرسار کر کے زندگی گزارنے والا ہے، جب وہ انسان کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس روح کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب وہ روح پوری دنیا میں جہاں چاہتی ہے آزادی کے ساتھ گھوم سکتی ہے۔ انسان بسنے والا ہندوستان کا تھا، مگر جب جسم سے روح جدا ہو گئی تو اس کی روح کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی روح کو آزاد کر دیا ہے۔ اب وہ روح صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا گشت کر سکتی ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی جا کر اپنے چاہنے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب کو مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اس کا برعکس جب کسی کافر کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جب کسی کافر کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی موت آ جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کی روح کو مقید کر دیتا ہے، اس کی روح کو زکر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اب دنیا سجین المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب انسان مومن کامل ہو کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جب انسان ایمان جیسے دولت و شراب ہو کر اپنی زندگی کو شرسار کی زندگی میں گزارتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب انسان نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے،
दायरे इस्लाम में दाखिल होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर गामज़न होकर जब इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को इकरार करते हुए दुनिया को कैद खाना समझकर जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान वो इंसान जो मोमिन कामिल होकर जिंदगी गुजार रहा है और कैद खाने में जिंदगी गुजार रहा है, जब इंसान की मौत होती है तो इंसान सोचता है कि वो दुनिया से चला गया है। हर आंख वाले आंख से देखते हैं कि मेरा भाई जाता हुआ नजर आ रहा है, औलाद देखती है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, औलाद देखती है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, बाप देखता है कि मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने से ओझल हो चुका है। हर रोज रो रहा है, हर चाहने वालों की आंखों पता निकल रही है, और चाहने वाला अपनी आंखों से आंखों से उसे सुगंध खाक करता है, उसे कब्र में दफना देता है। मगर जो मोमिन कामिल होता है, ईमान जैसे शराबखोर होकर अपनी जिंदगी को गुजार कर जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो जाने वाला अपने ज़बाने हाल से कहता है, मरने वाला कहता है ऐ मेरे अजीज अकारीब, रोने की बात नहीं है। मरने वाला कहता है ऐ मेरे रिश्तेदार, रोने की जरूरत नहीं है। मरने वाला कहता है अपनी औलादों से ऐ मेरे बेटे, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैंने जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारती है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा तैयबा पढ़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ऐ मेरे अजीज अकारीब, रोने की जरूरत नहीं है। आज तुम मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम्हें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरी मौत नहीं आई है, बल्कि मुझे कैद खाने से रिहाई है। वाह वाह, बहुत सारा। इसीलिए किसी शायर ने क्या कहा, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। जब इंसान मोमिन होता है और वो कैद खाने में होता है, और जब उसका इंतकाल होता है तो उसे कैद खाने से रिहाई अता हो जाती है। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप हज़रात से गुजारिश है करीब आ जाइए, जो जगह आगे खाली है उसमें बैठ जाइए ताकि जब कोई जाए आए तो आपको उठना ना पड़े। करीब आ जाइए, थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कीजिए। और मौत के हवाले से आप सुनिए कि मौत कोई ऐसी चीज नहीं है। आज हर इंसान मौत से डरता हुआ नजर आता है। हर इंसान को जब मौत खबर सुनाई जाती है कि तुम्हें एक मरना है, या किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारी मौत होने वाली है, वो इंसान आज ही मरता है, यानी आज ही से उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। अगर किसी को पता चल जाए कल मुझे मरना है तो आज ही से वो खाना पीना बंद कर देगा। सरपंच साहब, लगता है कि महवे नींद है, क्योंकि इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज से हमको लगता है कि 9-10 महीना पहले इनकी बच्ची का इंतकाल हुआ, जो कुछ महीने गुजारने के बाद दुनिया से चली गई। और जुमेरात की रात में मुझे खबर आई कि इनके एक और बेटा हुआ जो 4-5 घंटे के बाद इंतकाल हो गया। ये परवरदिगार आलम की आजमाइश है। परवरदिगार आलम कभी अपने बंदों को दौलत देकर आजमाता है, कभी अपने बंदों को औलाद देकर आजमाता है। ये तमाम तर आजमाइश परवरदिगार आलम अपने नेक बंदों से लेता है। जब बंदा नेक होता है उसके साथ मुसीबतें ज्यादा हुआ करती है। परवरदिगार आलम देखना चाहता है कि मेरे बंदे को जब मैंने दौलत दी है वो दौलत के नशे में चूर होकर कहीं मुझे भूल ना जाए। जब मैं उसे औलाद दी है तो औलाद के नशे में मुझे भूल ना जाए। परवरदिगार आलम कभी दौलत देकर आजमाता है, कभी दौलत लेकर आजमाता है, और देखना चाहता है कि जब मेरा बंदा उसको दौलत दिया तो मेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर जिंदगी गुजार रहा था, और जब मैंने उसे दौलत छीन ली है अब भी मेरा शुक्रगुजारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब भी उसे खुश है कि नहीं खुश है। जब इंसान दौलत के चले जाने के बाद या औलाद के चले जाने के बाद परवरदिगार आलम की हमदे सना करता है, उसकी शुक्र मजा आवड़ी करता है, तो परवरदिगार आलम फरिश्ते को हुक्म देता है, अरे फरिश्ते तेरे लिए मेरा वही बंदा है जिसकी तकलीफ के लिए जब मैंने आदम को पैदा करना चाहा तो तमाम फरिश्तों ने एतराज किया था, अरे परवरदिगार आलम तू आदम को क्यों पैदा कर रहा है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया था, मैं अपना खलीफा और नाइब बनाना चाहता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तखलीक हो रही थी फरिश्तों ने एतराज किया था, क्या मैं तेरी इबादत के लिए काफी नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था, ऐ फरिश्ते जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, तुम ईमान लाए परवरदिगार आलम को देखकर ईमान लाए हो, तुम जन्नत दोज़ख को देख चुके हो, तुम फरिश्ता हो, तुम फरिश्ते हो, तुमने रसूल इंसान को देखा है, मगर जिसे मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ऐसे बंदे को पैदा करने वाला हूँ जो मेरे रसूल को नहीं देखा होगा, जो
जो मेरे जन्नत को नहीं देखा होगा, जो मेरे जहन्नम को नहीं देखा होगा, जिसने मुझे नहीं देखा होगा, सिर्फ मुझे मेरी बातों को जानकर मेरे रसूल ने जो कलमा पढ़ा दिया है, उस कलमे को अपना कर इतने सिरातुल मुस्तकीम पर चलकर अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा। मगर याद रखना, जब वो एक बंदा मेरी बारगाह में आता है तो ऐ फरिश्ते, इतने नबी की दुआ कबूल होगी है, इससे पहले रसूल की दुआ को कबूल कर ली जाती है, इस बंदों की दुआ को कबूल कर ली जाती है जो अल्लाह को देखा। वाह वाह, बहुत अच्छे। जो बिन देखे ईमान ले आए, उसी का ईमान काबिल कबूल है। बेशक हक है। इसीलिए कहा जाता है कि मरने के टाइम ईमान कबूल नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान के मौत का वक्त करीब होता है तो उसके सामने तमाम चीजें हाजिर हो जाती है। वो जन्नत को भी देखता है, वो जहन्नम को भी देखता है, वो परवरदिगार आलम की तमाम बनाई हुई चीजों को देखता है, मगर उस वक्त ईमान लाना बेकार है, काबिल कबूल नहीं है। ईमान उसी वक्त काबिल कबूल होगा जिस वक्त इंसान देखा नहीं है। बिन देखे ईमान, आप लोग को देखे, अल्लाह को देखे नहीं देखे, जन्नत देखे, जहन्नम देखे नहीं देखे हैं। हम लोग तो उस रसूल के उम्मती हैं जिनका कलमा पढ़ते उस रसूल को भी नहीं देखे हैं, मगर उस रसूल ने जो बतला दिया है उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। जब ऐसा बंदा ईमान की हालत में दुनिया को छोड़ के जाता है तो दुनिया के जाने के टाइम लोग रोते हैं, मगर वो इंसान कहता है रो नहीं, मैं दुनिया को छोड़कर, कैद खाने को छोड़कर, अपनी आबाई जिंदगी को छोड़कर अपनी दायरी जिंदगी की तरफ में रवा दवा हूँ, कब्र की आवेश में जा रहा हूँ, मगर ईमान की हालत में गया है। कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहां तक उसकी